This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम. आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में, जिसका कि नाम है मेरी आवाज सुनो, में तहे दिल से स्वागत है. और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा. तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर चल रहे हैं उस शहर में जहां मेरा जन्म हुआ, जहां की मेरी पैदाइशी है और जहां मैं पला बड़ा, और जो शहर मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है. 22 साल हो गए उस शहर को छोड़े हुए, लेकिन आज भी उस शहर का सिर्फ नाम लेते हुए ही मुझे सारी यादें मेरी ताजा हो जाती हैं और एक अजब सी एक्साइटमेंट, एक अजब सा जुनून सवार हो जाता है. तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुंबई शहर की, और आज जो हमारे गायक हैं वो उस शहर से हैं. तो मेरे लिए थोड़ा एक स्पेशल भी है, क्योंकि उस शहर से मैं बहुत ज्यादा करीब हूं. सो लेट्स वेलकम Ashutosh Kapila from Mumbai. Welcome, Ashutosh. Thank you, Ashish. It's a pleasure to be here, and I'm very excited about the show. Unfortunately, just coming out of a laryngitis attack, not the best time to get one. मगर बहुत खुशी है मुझे, सबसे यहाँ वार्तालाप होगी, अच्छी बातें होंगी, कुछ गाना बजाना होगा, and I'm hoping for an enjoyable evening for everyone. Thank you. Absolutely. So first of all, thank you very much, आशुतोष, कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे इस शो पर मेरी आवाज सुनो ऑन भारत एफएम, यू आर हियर, एंड आप हमें अगले 90 मिनट बहुत एक से बढ़कर एक गाने आप पेश करोगे. और वो गाने कौन से हैं ये मुझे भी नहीं पता है, which is the surprise item of course. And as you mentioned that I salute you because you are not well. I mean, you were at a point where you could not have been able to do this show. Even right now, like, you are not 100%, but you took up the challenge and you are here to entertain us for the next 90 minutes. And kudos to you for doing that. But at the same time, I will tell you, at any point in time you feel that your throat is not helping you, is not supporting you, we don't have to continue for the 90 minutes. But for now, let's go ahead and start with the show. अब इससे पहले कि आप हमें आपका पहला गाना बताएं, उससे पहले हमें ये बताइए कि आप क्या करते हो for as a professional, what do you do, and a little bit about yourself, a brief introduction. Right. I have been in Bombay for about 5.5 years, and basically belong to Delhi. And during my childhood, which was spent in the beautiful city of Chandigarh, वहाँ पर मैंने कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी 5-6 साल. मेरे गुरुजी पंडित मदनलाल बाली बहुत ही अकम्प्लिश्ड सिंगर थे, और वो क्लासिकली भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने दी, एंड दैट वाज बिटवीन द एज ऑफ 10 and 15. सो आई थिंक फंडामेंटल्स थोड़े से शार्प हो गए थे, बट देन फॉलोड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिस्कनेक्ट. संगीत से दूर चले गए, गमे रोजगार जिसे कहते हैं, जॉब वर्क लाइफ उसमें लग गए, और बहुत एक किस्म से बाथरूम सिंगर का हो गया. कॉलेज में थोड़ा बहुत गाया. देन आई रिकनेक्टेड 2-3 years बैक विद अजीवासन, सुरेश वाडकर जी की एकेडमी है बॉम्बे में, एंड नाउ अनदर इंस्टीट्यूशन. सो वो एक ख्वाहिश तो शुरू से थी, एक पैशन था कि कहीं ना कहीं रिकनेक्ट करना है, बिकॉज दैट इज वंस ट्रू कॉलिंग. एंड
that is what's reconnected me to music. और थोड़े बहुत shows किए, live shows किए, और थोड़े बहुत YouTube वगैरह पे experiment किया, and I think that really is becoming more and more enjoyable. And as I get more encouragement and feedback from friends and well wishers, I think that's the path I would want to take more and more. क्या बात है. So now that you are here, let's go ahead and let's start with the program. Tell us about the first song, and is there any story behind you picking up this song as your first song? Yeah, well, ये जो पहला गाना है, ये कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया है. 1970 की फिल्म घर घर की कहानी का है. अब किशोरदा, you know, whom I consider a deity, ये सब किशोरदा, रफी, मुकेश, ये सब, लता जी, आशा जी, सिद्धाज हैं मेरे लिए, ये भगवान हैं. और बचपन से growing up in the 70s, you know, it was easy to, you know, be very obsessed with the film music, Bollywood music, and particularly क्योंकि मेरी परवरिश में मेरे माता पिता ने भी 4th year से तार किया हुआ था, गाते बहुत अच्छा थे, और इसलिए वो इन्फ्लुएंस किशोरदा, 70s meant largely किशोरदा, R.D. Burman, कल्याण जी आनंद जी, and they erupted like, you know, volcanoes, different kind of orchestration, different music. तो ये एक बहुत simple सी धुन है, but बहुत ही sweet melody है, and I'm going to start with this song, which is what we call an off-site song. ये लगता है कि कंपनी के बहुत सारे लोग ऑफ साइट पर गए हैं, बॉनफायर है, और एक अर्ली लव स्टोरी शुरू हो रही है विद कैरेक्टर प्लेड बाय राकेश रोशन and somebody who relatively unknown heroine called Bharti, but Kalyan ji Anand ji Kishore Kumar combination in this melody I will present. Let's hear it out. All right, here we go. समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है. समा है सुहाना सुहाना,
क्या बात है आशुतोष जी, क्या शानदार शुरुआत की आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि आपने कहा कि इस मूवी के बारे में शायद लोग उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन ये गाना आज भी उतना ही ताजा है, उतना ही फ्रेश है, उतना ही एक्साइटिंग है जितना ये अपने वक्त में था। सो वंडरफुल वंडरफुल स्टार्ट टू द शो। Thank you so much. Thank you. I'm glad you liked it. Yes, it was wonderful. But yeah, I mean, as I said, make very sure that if your throat is not helping you, not supporting you, let's be very clear on that one. Okay. Sure. But it was wonderfully done. Thank you So much. Thank you. अब बताइए अगला आपके पिटारे में क्या है हमारे लिए। हाँ, ये पिटारे में मैंने एक सोचा था कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसमें थोड़ा बाद में आ रहा था ये, बट देन आई पुट इट ऑन टॉप बिकॉज ये बड़ी जवानी दीवानी वाला अपने टाइम का आइकॉनिक नंबर है, एंड हियर आई लॉन्च इनटू आर डी बर्मन कंपोजिशन स्ट्रेट अवे. There's a lot of R.D. Burman in my list because, like I said, growing up in the 70s, you know, easy to become obsessed with, you know, the genius that he was. Absolutely. और ये अमित कुमार ने एक फिल्म तेरी कसम के लिए 1982 में रिलीज हुआ था सॉन्ग, कुमार गौरव और पूनम ढिल्लों पे पिक्चराइज है. इट इज अ वेरी वेरी नाइस मेलोडी और ये बहुत ही नेशन वाइड ऑब्सेशन हो गया था ये गाना जब रिलीज हुआ था 1982 में. एंड आई हैव अ वेरी विविड मेमोरी ऑफ हाउ, you know, तब तो हम छोटे थे, बच्चे थे, मगर I could see that people who are in their late teens and 20s considered it an iconic romantic number. So I will be singing the song which is ये ज़मीं गा रही है. क्या बात है. I was guessing it is that one, but thank you very much for picking this number again. क्योंकि मैं भी जैसा कि आपका बचपन था, मेरा भी बचपन ही था, लेकिन ये गाना बहुत ज्यादा पसंद था मुझे भी. So let's hear it out. साथ मेरे सारा जहां
घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। भूल कर राह कोई हंसिया न जाए, भूल कर राह कोई हंसिया न जाए, इस जगह कोई पर्दा नशिया न जाए, इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा, ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। La 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 la. Thank you. बहुत खूब आशुतोष। इस गाने के बारे में एक और बात कहूंगा कि ये गाना मुझे तो पसंद है ही, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरी धर्मपत्नी जो है उनको 80s के स्पेशली जो गाने हैं, एंड स्पेशली अमित कुमार कुमार गौरव कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ हर फेवरेट, सो she sent me a message that thank him on from my behalf, so thank you very much for singing this song. Yeah. All right, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, लेकिन बिफोर दैट टेल मी आशुतोष, I have seen that you seem to be knowing a lot of trivia, not just around the songs but the movies and everything. आप कुछ अलग से करते हो उसके लिए या कैसे? How do you get all that knowledge? कीड़ा है जी, फिल्मी कीड़ा शुरू से ही पड़ा हुआ है. I mean, sort of like I said, it stems from a deep interest in Bollywood cinema. While I was growing up, we were, you know, तब तो ये सब था नहीं इंटरनेट, और you know, screen was only 70 mm or 35 mm, and it was easy to, you know, just fall in love with all these melodies. But one thing I would like to say is that उस समय का 60s 70s का म्यूजिक भी देखेंगे तो the lyrics, you know, you had Hasrat Jaipuri, Shakil Badayuni, I know. you had, you know, great lyricists marrying into amazing compositions. जो music directors थे, they understood the लहजा, किस word को कैसे ढालना है, किस expression को कैसे डालना है music में, वो एक सबसे बड़ी कला है, which I fear that we might be losing it, you know, because today we tend to cram up a lot of words Google करके without understanding ये कहना कैसे है, right? Right. रोमांटिक बात है, उसको कहते कैसे हैं, ये इनको बहुत समझ थी म्यूजिक डायरेक्टर्स को, और Absolutely. इसलिए वो जीनियसेस थे, एकदम जीनियस जिसको बोलते हैं, मतलब वन इज नॉट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दैट म्यूजिक इवन टुडे, जबकि कई मॉडर्न सॉन्ग्स ऐसे हैं कि आदमी भूल जाता है कुछ दिनों बाद, मगर आज भी बहुत I याद know. करते हैं 60, Absolutely. 70 से. तो आपने कभी बॉलीवुड में कदम रखने का कोशिश किया? अरे नहीं, लाइक आई सेड, हमें तो गमे रोजगार जो यू नो आदमी, यू नो, जॉब वर्क,
फैमिली एक्सेट्रा में जब बिजी हो जाता है तो थोड़ा ड्रिफ्ट अवे कर गया. बट या बॉलीवुड ऑल्सो इट्स नॉट वेरी इजी टू काइंड ऑफ yeah. गो इन. ये लोग इतने मेहनत करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, 16 घंटे रियाज करते हैं. Absolutely. Which becomes very difficult. Yeah, All right, let's move on to our next song. अगला आपने क्या चुना है हमारे लिए? हाँ, ये this song is really the cult song of hope. It is from a film called Baaton Baaton Mein, and I think all the last 1.5 year that we have gone through the pandemic, जो बिल्कुल ही खस्ता हालत हुई थी और काफी दुनिया में एक साथ सब देशों में सब लोग सब नेशनैलिटीज के बहुत सफर किए बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड. उसमें ये गाना बहुत फिट आता है और आई मीन आई कैनॉट इमेजिन एनीबडी अदर देन किशोर दा विद दिस डलसेट टोन. इसमें इस गाने में थोड़ा वॉइस उन्होंने टेक्सचर चेंज किया है. एंड दिस सॉन्ग इज राजेश रोशन was the music composer for this song Baaton Baaton Mein. Right. And I will be presenting that next. Amit Khanna is the lyricist, right? I think so. Yes, you're right. Okay. तो एक बात मैं कहूंगा कि जो म्यूजिक है ना, ट्रैक का वॉल्यूम उसको थोड़ा लो कर दीजिए बिकॉज आपकी आवाज थोड़ी दब रही थी. तो थोड़ा सा म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा लो कर दीजिए. ओके, लेट्स हियर दिस वंडरफुल सॉन्ग. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है. ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है. ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है. नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे.
इस गाने की जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो इस गाने में बहुत मायने रखती है. व्हेन यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग, you need to have those emotions, and you did it really well. I mean, listening to the song, the complete feeling of the song was there in the song. Like, amazing job. Thank you very much for picking Thank you, this sir. beautiful number. Very positive song, of course, in these difficult times. And amazing lyrics, of course, by Amit Khanna, and very well sung by Kishore Kumar. Okay, अब बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर. अगला बताइए आपने क्या चुना हमारे लिए. जी, जी। अभी मैं थोड़ा मूड चेंज कर रहा हूँ कि ये जो हमारे फ़िल्म जगत में गज़ल्स का जो दौर आया था, उसमें बहुत बड़े चमकते सितारे जगजीत सिंह साहब थे. And you know, he sung some beautiful songs and ghazal format songs in films. एक उन्होंने गाया था सरफरोश फिल्म के लिए, जिसका म्यूजिक जतिन ललित साहब ने दिया था. एंड अमेजिंग गजल, वो बहुत ही हमेबल है और सिंपल सी मेलोडी है, मगर यू नो इट जस्ट हॉन्ट्स यू एंड इट्स अ रोमांटिक नंबर. होश वालों को खबर क्या है. तो I'm okay with all the viewers picking up the glasses of wine or whatever beverage. स्पेशली जो इंडिया में है वो लोग, उनसे मैं चाहूंगा कि आपका शाम का वक्त है, और शाम के वक्त इस गाने के साथ आप इस शाम को और भी रंगीन बना सकते हो अगर हाथ में. बिल्कुल, सुभान अल्लाह. अभी यहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग है, सो डेफिनेटली पीपल इन इंडिया, गो अहेड एंड एंजॉय दिस इवनिंग विद दिस वंडरफुल सॉन्ग. लेट्स हियर इट आउट, आशुतोष. All right, here goes. होश वालों को खबर क्या, मंगूदी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. ला 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 ला. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी. ला 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 ला. खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी.
चमकती आंखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। ये गाना सडनली खत्म हो जाता है तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं रहता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगा मुझे आने में। लेकिन आशुतोष, आई मस्ट टेल यू दैट विदाउट बीइंग 100%, इफ यू कैन सिंग दिस सॉन्ग दिस वेल, आई कैन नॉट इमेजिन दैट इफ यू वर 100% तो इस गाने का क्या होता। मतलब दिस वाज द, आई थिंक सो फार, आई थिंक सब गाने आपने बहुत अच्छे गाए, लेकिन इफ आई हैव टू रैंक इट, अमेजिंग, वेरी गुड, द वेरी गुड सॉन्ग, बहुत अच्छी तरह से गाया आपने। इट सूट्स यू, एक्चुअली सूट्स योर वॉइस, सूट्स योर मूड, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। सो मच। मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा caveat as they say, since I'm just coming out of laryngitis and Right. just voice is a bit broken, तो स्टूडियो में जब आदमी गाता है, और वो भी मुझे एक्सपीरियंस ये बॉम्बे नगरी ने दिया लास्ट 2-3 इयर्स में, स्टूडियो में कैसे रिकॉर्डिंग होती है और कैसे आप डिजिटली मिक्स कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं, स्प्लाइस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो काफी स्मूथनिंग आउट हो जाता है डिफेक्ट्स का, एंड द एंड प्रोडक्ट इज रियली फाइनली पॉलिश्ड सॉन्ग। मगर लाइव सिंगिंग में सारी त्रुटियां और सब कुछ तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूं मैं अपने श्रोताओं से। नहीं, दैट आई वुड कंप्लीटली एग्री आशुतोष की लाइव गाना वो भी 90 मिनट, that in itself is a challenge, and that's why that's why I salute you. I mean, especially coming in front of the entire world and knowing that you are not 100% and singing, and that too singing so well. Thank you very much. I cannot appreciate enough, and that's very nice. Thank you. Okay, बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। अगला आपने क्या चुना? जी, ये क्योंकि थोड़ा मैं खाने का और शायरी का एक संगम सा हो गया, मूड बन गया है, एंड इट वाज अ हैप्पी काइंड ऑफ गजल, रोमांटिक गजल। मगर अब जो मैं गीत गा रहा हूँ वो फिल्म अमानुष से है, विच इज ऑल्सो गॉट टू डू विद अल्कोहल। मगर इसमें जो हीरो है वो प्लेड बाय उत्तम कुमार, वेरी वेल प्लेड बाय उत्तम कुमार, बोथ इन द बंगला वर्जन एंड द हिंदी वर्जन। 1975 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। अगेन आर डी बर्मन, किशोर कुमार combination. Sorry, this was not an R.D. Burman thing. This is Shamal Mitro. Yes. Shamal Mitro is again an unsung kind of music composer जिन्होंने कुछ अच्छी फिल्में की, and this was one of the super hit sort of songs that he made. इस मूवी का जो गाना सबसे फेमस हुआ, आइकॉनिक हुआ, was दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे मोड़ा, and it became a very very popular song. However, मैंने जो ये गीत चुना, ये क्योंकि रिसेंट ईयर्स में जब भी मैं सुनता हूँ ये थोड़ा सा एक हॉन्टिंग सा लगता है। बहुत अच्छा गाया हुआ है किशोरदा ने ये। नॉट दैट ही इज, आई मीन एवरी सॉन्ग ही संग इज लाइक अ जीनियस, बट ये सॉन्ग एक तो मूड में फिट आ रहा था, एक इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पेथोस,
वो कहते हैं ना, एक पोएट हैं जी शेली साहब, पर्सी बिस शेली, अंग्रेजी पोएट, वो कहते हैं कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल आर सैडेस्ट थॉट्स। That is तो absolutely true. Yeah. शोरदा की और रफ़ी साहब की जो ग्रेटनेस ये है दैट जितने वो चंचल प्रकृति के गाने और योडलिंग वाले गाने अमेजिंग ईज से गाते थे, उतनी ही ईज के साथ वो पेथोस वाले गाने गाते थे, दर्द भरे गाने गाते थे। दैट्स व्हाट देयर सुपर्ब वर्सेटैलिटी वाज। तो इस गाने में हम थोड़ा सा देखेंगे पेथोस ऑफ अ स्पर्न्ड लवर, वो निकल के आएगा, एंड वी विल जस्ट क्या बात है, मूड बन चुका है, तो हम विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू दिस वंडरफुल सॉन्ग। यस, ओके। ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर यूं पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। ना पूछो कोई हमें पी के ना भूख लगे, ना रहे दर्द कोई, गरीबों का तो नहीं ऐसा हमदर्द कोई। कब तक हम आहें भरते, ना पीते तो क्या करते, पी गई आग हमें, डस गए नाग हमें। सुना है जहर से ही जहर मरा करता है। ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। ना पूछो कोई हमें के प्याले जैसा सभी मुझे तोड़ गए, खाली बोतल की तरह रास्ते में छोड़ गए। झूठे तो पूजे जाएं, सजाएं सच्ची पाए, जब निर्दोष रहा न्याय खामोश रहा। तू भी भगवान क्या इंसाफ किया करता है। ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया, थोड़ा सा जी लिया, ओ थोड़ा सा जी लिया। Thank you. I should give kudos to you, क्योंकि इस फिल्म के बारे में जब भी बात होती है, the way as you mentioned, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा is by default the pick that any singer would make. लेकिन आपने इस गाने को चुनकर, I mean, you can go back and look at all the comments that you have received just for picking this song and then singing it so well. जैसे कि आपने कहा कि आप एक मूड, एक माहौल बना रहे हो,
और इंडिया में तो शाम का वक्त है, मतलब इससे अच्छा माहौल बन नहीं सकता। आप एक से बढ़कर एक चुन चुन कर गीत हमारे सामने पेश कर रहे हो और इतनी बखूबी से गा रहे हो विदाउट बीइंग 100%। वंस अगेन सल्यूट। Thank you. Thank you. और इस गीत के जो लिरिक्स हैं, मैं उसके बारे में भी मेंशन करना चाहूंगा। इंदिवर जिन ने लिखा इस गीत को, एंड जैसा कि आपने कहा कि 60s 70s का वो ऐसा दौर है जहां पे ऐसा लगता था कि लिरिसिस्ट लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं। मतलब हमें तो सुनने के बाद पता चलता है कि उन्होंने क्या सोचा, लेकिन आप ये सोचिए कि वो लिखने से पहले वो सोचते रहते हैं उस डेप्थ तक। आई मीन दैट इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। ऑलराइट, ये बात कहना चाहूंगा कि, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि पुराने गाने इसलिए अभी तक नए लगते हैं और चलते रहते हैं। और अभी तक ऑडिशंस में, जैसे हमारे गुरुजी सुरेश वाडकर जी कहते थे कि whenever they audition young boys and girls for any competition या फिल्म के लिए, तो वो रफी, किशोर, मुकेश, लता के गाने को बोलते हैं। And because he calls them ग्रंथ, ये गाने जो उन्होंने गाए हैं वो ग्रंथ हैं, संगीत के ग्रंथ हैं। तो without going through the basic texts or scriptures, you can't really hope to become a great singer. So that's learning I had. Yeah. Absolutely. All right, बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। अगला आपने क्या चुना? Yes, this is another romantic number from the film कोहरा, 1964 में रिलीज हुई थी, and विश्वजीत एंड वहीदा रहमान, right? Yes. जाने क्या सोच के? Sorry. Okay, yeah, I missed a song here which I will present, which is from the film Kinara. Again, this is introducing Gulzar Saab into the terrific duo of Kishore Da and R.D. Burman. So Gulzar, R.D. Burman and Kishore Da 70s में वो भी इतने छाए हुए थे और इतने टेरिफिक गाने उन्होंने दिए, इतने फीलिंग वाले गाने दिए। और ये एक रिफ्लेक्टिव, किशोर दा इन रिफ्लेक्टिव मूड है। बहुत ही अच्छा मेलोडी बनाया है R.D. बर्मन ने, वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज डिंग चैक्स काइंड ऑफ सॉन्ग्स of the early 70s, which showed what a genius and how versatile he was, and that's why he's the big boss forever. So ये एक रिफ्लेक्टिव सॉन्ग है और मैं गाने की उससे कोशिश करूंगा। ना पूछो कोई हमसे के बाद, this was the song from Kinara. Yeah, okay. All right, Start. Yeah, let's hear it out. जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा।
को घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको, तुम भी मिल जाओ घड़ी भर तो ये कम होता है। एक घड़ी का सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। मुझे लगता है यहाँ पर काफी सारे कमेंट्स हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप गुलजार के गाना गाइए। इज ही योर फेवरेट लिरिसिस्ट ऑफ व्हाट? Oh yes, yes, of course. Gulzar Saab, Javed Akhtar, दोनों ही. But Gulzar, again, it's that whole जादू of the 70s and 80s. इतना अच्छे अच्छे उन्होंने गीत हमारे लिए लिखे हैं. Gem of collection of gems, really. कोई भी गाना उठा लीजिए. परिचय. वैसे तो सारे लिरिसिस्ट हाँ, एब्सोल्युटली, आंधी मौसम इजाजत, पिक एनी सॉन्ग। बट व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज लाइक इन मेरे भी जो वैसे तो सारे के सारे लिरिसिस्ट जैसा कि आपने कहा कि देवर एक से बढ़कर एक, लेकिन अगर अगेन इफ आई हैव टू रैंक देम, आई मीन गुलजार एंड आनंद बख्शी इज माय टॉप टू एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। there are so many songs that actually live my life based on those songs, to be very serious. मुझे अगर कोई भी सिचुएशन हो जिंदगी में, मुझे बॉलीवुड गाने ही याद आते हैं, और ज्यादातर गाने या तो गुलजार के लिखे होंगे या आनंद बख्शी के लिखे होंगे। Absolutely. That's very telling, Ashish, because ये गाने ग्रंथि नहीं है, ये साथ में चलते हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, कंपेनियंस फॉर लाइफ, एंड अनकंडीशनल लव एक जो होता है जगत में, वो इन गीतों के साथ हो जाता है, एंड दे लव यू बैक, एंड इट्स अ वेरी डीप रिलेशनशिप वी हैव विद दीस सॉन्ग्स. It might sound a bit silly because a song is a song, but then again not, because उसके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो आपको बहुत अलग जगह पे, एक डिवाइन स्पेस पे ऑलमोस्ट ले जाता है और कैथारसिस करता है. आप हंसते हैं, आप रोते हैं, और जीवन के हर पहलू को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेशन जो दिया जाता है वो म्यूजिक के थ्रू है. सो एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा आपने आशुतोष, थैंक यू. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. अगला क्या है हमारे? हाँ, ये सॉरी, जो मैंने कोहरा का बोला था वो अब मैं पेश कर रहा हूँ. एन अल्टीमेट रोमांटिक नंबर संग बाय हेमंत कुमार, जो बहुत ही उम्दा गायक हैं. और लता जी ने while paying tribute to him said that when she hears हेमंत कुमार, ऐसा लगता है कोई सेंट किसी मंदिर में बैठे गा रहा है दूर से. उनकी बड़ी हॉन्टिंग सी आवाज़, एक प्लेजेंट सी आवाज़ आती है. So this is a epic number from the film Kora, Ye Nayan Dare Dare. वाह, क्या बात है. Let's hear it out. जी. All right, here we go. ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो. रात हंसी, ये चांद हंसी,
सबसे हंसी मेरे दिल पर, रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी, प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी, मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर, मुझे जीने दो। थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा चाह रहा हूं कि अभी शाम हो जाए और मेरे हाथ में जाम हो। आपने ऐसा मूड बना दिया है कि मतलब जो इंडिया में है वो तो सुखी हैं क्योंकि उनके लिए शाम है और वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी इवनिंग को। लेकिन आपने तो मुझे एकदम मजबूर कर दिया कि सुबह सुबह भी मेरा मन कर रहा है कि जाम मेरे हाथ में हो। Go ahead, Ashish. Alcohol is time agnostic. No worries. नहीं, लेकिन मूड भी बनना चाहिए ना, तो आपने तो वो पूरा मूड बना दिया है। मतलब आप एक से बढ़कर एक ऐसे गाने चुन चुन के ला रहे हो कि मतलब बिना जाम के मजा नहीं आता है ऐसे गानों का। जस्ट अमेजिंग एंड यू आर सिंगिंग इट सो वेल। अमेजिंग बॉस, वेरी नाइस, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको है ना ऐसा इस जॉनरा में शायद ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए बिकॉज यू हैव दैट वॉइस, यू हैव दैट फीलिंग, यू हैव दैट इमोशन। आई थिंक आपको जाम वाले गानों के साथ ज्यादा उसमें कुछ करना चाहिए आपको। मे बी डू अ शो और समथिंग। एक शाम जाम के नाम। हाँ, एक शाम जाम के नाम, क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। अगला आपने क्या चुना? अगला एक्चुअली गीत नहीं है, मैं एक मेडली, छोटी सी मेडली पेश कर रहा हूँ। एंड दिस इज रियली it kind of engages everybody who's interested in music. It's the point and the objective here is to involve them in a bit of gyan on the rag part of it. तो ये राग यमन की मेडली है। राग यमन is a very popular rag. Very popular, yes. Hundreds of Bollywood songs have been created around Rag Yaman, and I'll present a medley of some 7-8 songs. क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। I hope I can carry them off. इसमें खास बात यह है कि आप देखेंगे कि ये पुराने गाने हैं, ज्यादातर क्लासिकल बेस्ड हैं। मैं सिर्फ मुखड़ा गाऊंगा, पूरा गाना नहीं गाऊंगा। Although temptation बहुत होता है, when you hear Mukesh classic. Yeah, I know one gets carried away sometimes, but of course the voice is not keeping up. So
मैं ये सिर्फ तानपुरा, सो अनप्लग्ड इसको गाएंगे हम, अनप्लग्ड वर्जन है विद ओनली द तानपुरा accompanying, right? And ठीक, I'll do a bit of sargam, and then I'll start with the mukhras of these 7-8 songs. sounds good. Let's hear it out. So C sharp, Rag Yaman is it's called as Sampurn because all 7 notes are used in the ascending order and the descending order. And इसकी जो खास बात है इसमें, as you all would know, most of you would know, मा तीव्र लगता है, उसी से कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है इस राग का. नी रे गा रे सा, नी रे गा मा पा, मा पा मा गा रे, नी रे गा रे नी रे सा. तो ये यमन का आरो टाइप एक फ्लेवर आपको आ गया कि कैसे होता है. अब प्लीज कनेक्टेड टू द songs, the very iconic songs of the 50s, 60s that I will be singing a short piece of. So connected to these notes, please, and your enjoyment will double, I'm hoping. चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना. चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना. मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना. चंदन सबदन चंचल चितवन, आंसू भरी है ये जीवन की आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए. आंसू भरी है, नाम गुम जाएगा, चेहराए बदल जाएगा. मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे हो नाम गुम जाएगा. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो. एहसान तेरा होगा मुझ पर, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात. एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी. भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ. भूली हुई यादों, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए,
खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न विसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू। आपने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी। एक के बाद आप एक ऐसे ऐसे गाने चुन रहे थे, लाइक as you mentioned that I wanted you to actually continue with the antara as well for each and every song that you picked, and the curiosity was getting more and more because जैसे कि आपने कहा it's one of the most famous rag in Bollywood and इतने सारे गाने हैं कि मैं वेट कर रहा था कि अगला आपने कौन सा चुना। So it was a very wonderful journey that we had in the last 5 minutes. That was awesome. Very well sung, each one of them. Thank you, Ashutosh. Thank you, and please forgive me my cracked voice, but नहीं, वो तो मैं तो आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप शो कर रहे हो with less than 100%. That itself is a big deal. But as long as you are enjoying, we are enjoying it. So don't worry about it. I'm hoping everybody is enjoying. Thank you. Yes. All right. अब बताइए अगला क्या है हमारे लिए? अगला एक बहुत अच्छा जेम है, मॉडर्न गाना, and as you would have deduced that I'm so mired in the 70s, 80s, 90s that it's very difficult for me to transition to the 21st century, but I did make an effort to choose and I was able to choose a gem from the 2014 film, Yash Raj बैनर की एक फिल्म थी, दम लगा के हर्षा, आयुष्मान भूमि पेडनेकर पे, और ये फिल्म है और पिक्चराइज है, और ये अनु मलिक साहब, अगेन वन ऑफ द रियली ग्रेट कंपोजर्स अकॉर्डिंग टू मी। वो जितना मर्जी आप बोले कॉपी किया ये गाना, वो इंस्पायर किया तो व्हाटएवर, बट आई थिंक ही हैज कंपोज्ड सो मेनी सॉन्ग्स व्हिच आर वेरी हमेबल, amazing melody, amazing beat, rhythm, he's got it. I mean, he's really a champ. So ये एक गाना है जो क्लासिकल बेस्ड है, आई एम अटेम्प्टिंग इट, जो पैपॉन ने गाया है, न्यू सिंगर, अगेन आई फील ही शुड सॉर्ट ऑफ बी सिंगिंग मोर सॉन्ग्स। अच्छी धुन है और इसका फ्लूट, प्लीज नोट whoever is listening into this show, इसमें फ्लूट का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। सो I'll give this a shot. Let's hear it up. ये मोमो के धागे।
किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। दिन है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे। ये सब बेपरवा मन पहले तो न था, ये सब बेपरवा मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। खाली राहें हम आंख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे। Thank you. Very beautiful, Ashutosh. And जैसा आपने कहा कि I was paying attention to the flute actually. Flute has been, I mean, it is a wonderful composition for sure. And Anu Malik, yes, as you mentioned, very underrated. I think बहुत लोग काफी बातें करते हैं उनके बारे में, लेकिन मुझे एक शो याद है, मैं टीवी पर देख रहा था, and it was him and Javed Akhtar, and they decided let's compose something right now. You give me the lyrics, I'll compose the music. Right. And they did that in Javed Akhtar came up with 2 lines and he gave the music right then and there. मतलब बॉस ये टैलेंट नहीं तो और क्या है.
No, no, he's also a genius. Absolutely. I consider him in the league of geniuses. कोई कुछ भी कहे, but उन्होंने जो versatility दिखाई है, right from बाजीगर, you know, भड़कता हुआ नंबर, ये काली काली आंखें, टिरिरु, टिरिरु, to very serious classical based songs. I mean, it takes Absolutely. something, yeah. You know, you see his range, it's fantastic, you know. Very enjoyable numbers, very enjoyable music. No doubt about it. Awesome. Right. ओके, ऐसे बातें करते करते काफी वक्त निकल चला है और you have done wonderful, so that's awesome. Just wanted to give you a time check. We have like 17 minutes left, so you can arrange your songs accordingly. बताइए अगला आपने क्या चुना हमारे लिए? Now I'm going right back in time to the 40s, you know. Oh wow. This is absolutely crazy combo because original sequence में नहीं था, but yeah, 1949 में a 24-year-old Mohammad Rafi sang this song, and in later interviews he said, "ये मेरा सबसे favorite गाना है," and if a deity like Rafi साहब is saying that, it means कि really, you know, ये बहुत ही तोड़फोड़ गाना है, as they say. क्या मेलोडी बनाई है, क्या अच्छा नौशाद साहब ने इसको कंपोज किया है. And you don't get to hear these kind of songs. That's why I especially chosen this, because बचपन से सुनते आ रहा था ये. My dad used to sing this quite well, and I'm sure a lot of dads sing this. I've heard this growing up. So here goes a song called Suhani Raat Dhal Chuki. Oh my God. You know, the longing of a lover. Amazing, amazing pick, Ashutosh. I love this song as well. Let's hear it out. Okay. तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में, फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे,
ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू। भाई आपको तो सारे कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे बाद में, और मैं काफी फ्लैश भी कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग कि भाई मार ही डालोगे, मार डाला, मार ही डालोगे काइंड ऑफ कमेंट्स यू आर गेटिंग। बट देयर इज वन कमेंट दैट आई वांट टू मेंशन, आशुतोष। आई थिंक शुचि कपिला, इज शी योर सिस्टर? Oh yes, she is. Yeah, she's in. तो उन्होंने लिखा दिस, कितनी यादें हरी कर दी इस गाने से। सुपर। जी। इफ यू डोंट माइंड, आप शेयर कर सकते हैं उनमें से कुछ यादें? ये बड़ा सेंटी मामला हो जाता है आशीष, क्योंकि ना ये पुराने गाने लाइक आई सेड इतने पावरफुली एम्बेडेड रहते हैं आपकी साइकी में व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड लिसनिंग टू योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ दैट जनरेशन। वो वेदर माय डैड वाज शेविंग और हैविंग अ बाथ और रोमिंग अराउंड, यू नो, घर में तलत महमूद, केएल सहगल, मी एंड माय सिस्टर, आई हैव टू शेयर दिस, एंड सॉरी दीद्स, आई कांट हेल्प बट शेयर दिस। वो मेरे डैड जो थे, यू नो, ही ग्रू अप इन द 40s एंड 50s, तलत महमूद, रफी, केएल सहगल, उससे पहले केएल सहगल एंड जगमोहन। इतने स्वीट गाने थे उनके, बट स्टाइल बड़ा अलग था। आजकल तो अप्रिशिएट शायद नहीं करेंगे वो वाला स्टाइल, बट वो गाते रहते थे पूरे 3-3 पैरा, 2-2 पैराग्राफ और पूरे स्टैंजास। यू नो, आजकल बहुत मुश्किल होता है हमें याद करना 3-4 पैरास। तो जब भी वो आफ्टर डिनर शुरू हो जाते या सुबह सुबह शुरू होते, तो me and my sister would start punching him in a playful way, कि no Sehgal, please spare us, and then he would start again on another Sehgal or Jagmohan, and slowly it grew, you know, that sensibility grew कि हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छे गाने हैं, ये तो मतलब अमेजिंग मेलोडीज बनाई हैं, कोई भी आप उठा लो। जगमोहन, लिटिल नोन सिंगर, and I think certain sections of older crowd here would remember Sapan Jagmohan as a genius singer who, because he didn't migrate from Calcutta to Bombay, वो वहीं पर ही रह गए। बहुत अच्छा बंगला गाने गाए और बहुत स्वीट हिंदी गाने गाए थे उन्होंने, जिनमें से एक एपिक नंबर मैं 2 लाइनें सिर्फ गा के सुनाऊंगा, because it's necessary to pay a tribute to Jagmohan without any accompanying music, of course, which is दिल को है तुमसे प्यार क्यों, प्यार क्यों, पहली नजर की छाँव में, तुमसे तुम्हारे गाँव में, आंखें हुई थी 4 क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं, पहले मिलन की छाँव में, तुमसे तुम्हारे गाँव में, आंखें हुई थी 4 क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं, ये ना बता सकूंगा मैं। क्या बात है, वेरी गुड। आपको तो म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है बॉस, आप तो बिना म्यूजिक के भी इतना बखूबी गा रहे हो बॉस। दैट इज जस्ट अमेजिंग, वेरी नाइस। Suddenly came up, I remembered all the memories of growing up and me and my sister listening to my dad sing this. I was about to say thanks to your sister कि हमको ये सुनने को मिला। Thank you शुचि। All right, let's move on to our next song. अगला क्या है? अगला we have फिर वही रात है। हाँ, I think we should play this दीवाना लेके आया है। Yeah, I think we should go for दीवाना लेके आया है। It's a very nice, again, R.D. Burman and Kishore Da number of 1972. The remarkable thing about this is not
only that वो melody बहुत अच्छी बनाई है, composition is excellent, but Rajesh Khanna is wearing pink. So yes, I remember And that. he's wearing big dark glasses, and whatever Yeah. he did, he couldn't go wrong. He was the mega star. वो जो भी करते वो I- स्टाइल बन सही जाता। होता है, हाँ। और काफी लोगों ने पिंक डालना शुरू कर दिया आजकल तो, मतलब लास्ट 40 ईयर से तो वो नहीं मेन डोंट वेयर पिंक, मगर अब वो वापस आ गया कि जी रेट्रोसेक्सुअल आप हैं तो आप पिंक डालिए, तो इट इज कमिंग बैक एंड आई सी men wearing pink, so it's great. Back to Rajesh Khanna attire. So yeah, so that's the song that I will attempt. Let's hear it. दीवाना लेके आया है। ठीक है, let's hear it out. दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा हो, चांद सा जीवन साथी मुबारक जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने, हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी हैं मेरे अपने, ओ उसकी खुशी अब मेरी खुशी है, दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना,
दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। थैंक यू। बॉस, मुझे तो लगता है कि उल्टा हो रहा है। कहाँ हम सोच रहे थे कि आपके गले की आवाज ठीक नहीं है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, 90 मिनट आप टिकोगे कि नहीं। What I'm seeing right now is actually you have actually started enjoying and you can continue for next 90 minutes. That's what it feels like to me. Because वो आपका डांस करना गाने के साथ, I mean that's absolutely what I was looking for, and you seem to be enjoying the most, and that is the best part about this whole show. एक बात मैं जरूर मेंशन करूंगा about the greatness of R.D. Burman. In this song, he basically put the music of another song, which is another super duper hit, and उस गाने के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि Anu Malik had mentioned this in one of his shows, where he said that the reason he loved R.D. Burman's composition is trying something different, and that small thing that he tries, everybody remembers that. जैसे कि ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, उसके बाद जो म्यूजिक है टिनिडिंग टिनिडिंग टिनिडिंग, that part is so critical, and that shows up in this song as well. And salute to him. I mean, only he could have done that. That's amazing. He was a crazy genius. He was a crazy genius. Some trivia about him, about his very epic song आशा जी पे जो उन्होंने कंपोज किया था, आशा जी ने गाया था, चुरा लिया है तुमने। उसके the evening before, next day was the recording, the evening before he got 2 glasses and said ये कल use होगा, and she didn't know much about it until she reached the studio and said ting 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 is how it will sound in the beginning. So he was just crazy, and people who played with him in the orchestra say वो कभी बास्केट से, कभी ड्रम से, कभी चम्मच से, कभी मंजीरे से, कभी बोंगो कॉन्गो सैक्सोफोन गिटार सितार। Like वो वाला song मेरे सामने वाली खिड़की में है, he used कंघी use किया। Yes, absolutely. He was a genius. तो आशुतोष, वैसे तो वक्त हो चला है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आपने जितने गाने प्रिपेयर किए हैं उसमें से अगर आपको कोई छोड़ना पड़े तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आई नो दैट यू आर नॉट 100%। आप कितना गाना चाहते हो वो मुझे बताइए। एक तो आपको गाना ही है, एटलीस्ट वन यू हैव टू सिंग, बट इज देयर मोर देन वन सॉन्ग दैट यू वुड लाइक टू सिंग? This one, is a song suggested by my wife Ishani, and she's भैया ये नहीं तो पड़ेगी बहुत बुरी तरह से। नहीं गाया तो पड़ेगी नहीं, but it is a fantastic melody composed by, again, sorry, Gulzar, R.D. Burman and Kishore Da combination, from a film called Namkeen. Film did too well, but ये गाना मेरे को जब इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने गाना I think I know which one you are talking about. It is crazy, and it is so melodious, and it continued to haunt me. And I'll attempt this. It would be my last number, and it's a fitting kind of last number because it's a song of a traveler saying, "Hey, goodbye, guys." Absolutely. And गुलजार साहब के क्या लिरिक्स हैं, और मतलब किशोर दा ने क्या गाया है। No doubt about it. No doubt about it. Let's listen to this wonderful number. All right. राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। राह पे रहते हैं,
यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। हाँ जल गए तो धूप में जो साया हो गए, हाँ जल गए तो धूप में तो साया हो गए। आसमां का कोई कोना ओढ़ा सो गए, जो गुजर जाती है बस हो उस पे गुजर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, मुड़ के हमने कोई मंजिल देखी ही नहीं। रात दिन राहों पे हम हो शाम सहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। ऐसे उजड़े आशियाने दिन के उड़ गए हो, ऐसे उजड़े आशियाने दिन के उड़ गए। बस्तियों तक आते आते रास्ते मुड़ गए। हम ठहर जाए जहाँ हो उसको शहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। Thank you very much. What a wonderful end to the show, Ashutosh. I mean, that was just too good, too good. मैंने जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप less than 100% में इतना entertain कर सकते हो हमें, तो आप जब 100% होंगे तो उसकी बात क्या होगी वो तुम्हें बता ही नहीं सकता. Maybe we should do this again whenever you are ready with 100%. Sure. But to be very honest, wonderful entertainment, Ashutosh. It was not just about singing. It was about the entire package that you came with the selection of the songs, with the trivia and the conversation that we had.
I totally loved it, and I'm pretty sure all our listeners enjoyed it too, and viewers enjoyed it too. So thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Now, before I formally end, any last few words that you would like to say? No, I mean, thanks to everybody who's tuned in and watching this still. I really appreciate all your kind encouragement. There's a lot of encouragement that came in from friends, and my family's been, supporting me and goading me on. Till today, I was not sure whether, गा सकूंगा, आवाज निकलेगी या नहीं, because काफी थोड़ी broken हो गई है. But बस आपका सबका प्यार और support somehow I could not say no and say, okay, let's give it a shot and see how it goes. Thank you so much, everybody who's logged in and watching this. Really, from the bottom of my heart, thank you so much for logging in, tolerating some of the flaws in my voice. And I hope you had a reasonably enjoyable time. Thank you so much. Thank you very much, Ashutosh. With that, we come to the end of our show, and hopefully we'll get to meet soon and listen more songs from you. Until then, goodbye, Shubhratri, Shabba Khair. अब आप अपना जाम लेके songs और अपने खुद के गाने. Actually, one thing I wanted to mention is people who might have missed this show for multiple reasons can always come back and watch this on our Facebook channel or on the YouTube channel. All our shows stays on our channel forever. So even if you have missed it, don't worry about it. Let your friends and family know, and you can come back and enjoy this entire show. So until then, good night, Shubhratri, Shabba Khair. Enjoy your Saturday over there in the India and over here. Have a wonderful weekend, everyone. Thank you very much. Thank you. Have a great weekend. Thank you. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत.